السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ کے پیارے دیوان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نماز کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، سجدہ سہو کے مسائل اور عین نماز میں قرآن شریف پڑھنے کا بیان، اس پر گفتگو آپ متفرق نشستوں میں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ مفسدات نماز، نماز توڑنے والی چیزوں کا بیان، اس پر آپ مسائل شرعیہ سماعت کریں گے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے نماز کا فاسد ہونا جو ابھی آپ سنیں گے، اور ایک ہوتا ہے نماز کا مکروہ تحریمی ہونا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، بڑا ڈفرنس ہے۔ نماز اگر فاسد ہوتی ہے تو اب سوائے نئے سرے سے اسٹارٹنگ سے پڑھنے کے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، دوسرا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اور نہ سجدہ سہو سے وہ غلطی درست ہوگی، نئے سرے سے پڑھنا ہوگا۔ اور نماز اگر مکروہ تحریمی ہو تو اس کا پھر سے پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی مکروہ تحریمی میں نماز تو ہو جاتی ہے، ہو جانے سے مراد تحریمی ہوتی ہے، جس کا پھر سے ریپیٹ کرنا، زندگی میں اس کا دہرانا اس کے ذمہ واجب رہتا ہے۔ تو مکروہ تحریمی بھی ہوئی جب بھی سجدہ سہو سے وہ غلطی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے نصف کلائی سے زیادہ آستین چڑھا کر نماز پڑھ لی، اب اسے خیال آیا اور سجدہ سہو کرے، سوچے نماز ہو جائے گی، نہیں ہوگی، بلکہ پھر سے پڑھنا واجب ہوگا۔ تو فاسد اور تحریمی میں فرق یہ ہے کہ تحریمی ہو تو پھر سے پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور فاسد ہو تو نئے سرے سے پڑھنا اس کے ذمہ فرض رہتا ہے۔ تو آج آپ سماعت کریں گے مفسدات نماز، نماز توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ حالت نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے تھوڑا بولے چاہے زیادہ بولے، بھول سے بولے یا جان بوجھ کر بولے، اگر حالت نماز میں کلام کیا، بات کیا، نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پھر بھی وہ پڑھتا ہے تو بس اٹھک بیٹھک ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، باہر ہو گیا نماز سے۔ اب حالت نماز میں کسی نے سلام کیا، جب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی نماز میں تھا، اس کو کسی نے سلام کیا، اس نے جواب دے دیا، اگرچہ صرف وعلیکم ہی کہا ہو، یعنی پورا جواب نہیں دیا، وعلیکم السلام، صرف وعلیکم بھی بولا، جب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو حالت نماز میں بات کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، کلام کرنے سے، بات کرنے سے نماز ٹوٹے گی تو اس میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر وہ بہرا نہ ہو، شور و گل نہ ہو، ٹریفک وغیرہ کا شور نہ ہو، تو اس کے اپنے کان تک آواز پہنچے۔ اگر حالت نماز میں ہونٹ تو ہلے، بولنا پایا گیا، وہ جانتا ہے کچھ الفاظ نکلے، لیکن اتنی پست آواز تھی کہ بالکل سناٹے کا ماحول ہے، جب بھی اس کے کان تک آواز نہیں پہنچی تو وہ بولنا مانا نہیں جائے گا، بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے
نماز میں کسی کو چھینک آئی، الحمدللہ نہ کہے۔ امتیاز بھائی آواز نہیں آ رہی، آواز ٹھیک کے مسئلہ سے آواز ابھی آ رہی ہے؟ جی 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 الحمدللہ۔ وہ ایک کال آ گیا تھا، شاید کٹ گئی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نماز میں کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہے، لیکن اگر کہہ دیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی نماز میں اور کوئی چھینکا اور اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اب سننے پر نمازی نے عین نماز میں چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، تو یہاں چونکہ چھینک کا جواب پایا گیا، اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو جس نے حالت نماز میں یرحمک اللہ کہا، چھینک کا جواب دیا، تو اس کی اپنی نماز جاتی رہے گی۔ اسی طرح سے کوئی نماز میں اور کوئی خوشخبری اس نے سنی، کوئی خوشی کا اعلان ہوا یا کچھ ایسا ماحول ہوا جس سے سمجھ میں آیا کوئی خوشی کا معاملہ ہے، اور وہ خوشی کے جواب میں سبحان اللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کا اعلان ہوا اور اس نے عین نماز میں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا، تو چونکہ یہاں خبر کی جواب اس کی نیت پائی گئی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لیا، نماز جاتی رہی۔ مقتدی لقمہ دے گا صرف اپنے امام کو دے گا۔ اگر مقتدی نے اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دیا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بہرحال یہ کنڈیشن کا پایا جانا بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن ایک مثال یوں دے دو کہ کوئی مثال کے طور پر آپ 2-3 لوگ جماعت بنائے ہیں، یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں کوئی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے۔ اب اس نے دوران تلاوت کچھ غلطی کی، کچھ آیت وغیرہ کچھ الفاظ حذف ہو گئے، اب آپ کو سورہ یاسین شریف یاد تھی، آپ نے نماز میں اس کو لقمہ دے دیا، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ کلام کرنے میں داخل ہوگا، بات کے حکم میں آئے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اسی طرح امام اپنے مقتدی کے علاوہ کسی اور کا لقمہ نہیں لے گا۔ اگر امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لیا تو بھی نماز جاتی رہے گی۔ اب کسی نے لقمہ دیا تو یہ لقمہ دینے والے کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے کہ میں نماز میں رہوں تو لقمہ دوں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو امام صاحب کو لقمہ دینے کا بہت جستجو رہتی ہے، شوق رہتا ہے۔ اب ان کے خیال میں امام صاحب نے آج مغرب میں عشاء میں دوران تلاوت کچھ غلطی کی ہے، وضو خانے پہ تھے وہیں سے لقمہ دے دیے، سحن میں پہنچے تھے ابھی تکبیر تحریمہ نہیں کی کہی تھی، لقمہ دے دیا۔ اب امام صاحب کو کیا معلوم کہ جس نے لقمہ دیا ہے وہ جماعت میں آیا ہے کہ نہیں؟ امام پیچھے تو نہیں دیکھتا نا، ہاں وہ ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ سرکار نے فرمایا میں جس طرح سے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان رکوع تو ایک ظاہری کنڈیشن کا نام ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو سرکار علیہ السلام ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور جو دل میں خیالات ہیں اس پر بھی سرکار السلام کی نظر ہے، اور ایسے ہی دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح سے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح سے پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ امام الانبیاء کی شان ہے۔ بہرحال امام پیچھے تو نہیں دیکھ رہا ہمارا مسجد کا
अब जिसने लुकमा दिया उसको उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर लुकमे की वाकई जरूरत है तो जमात में शामिल हो, फिर लुकमा दे। अब इमाम साहब को अगर ये डाउट हो तो जमात के बाद वो पूछ सकते हैं कि किसने लुकमा दिया, ताकि मालूम तो कि कहां से दिया। अगर वो बताता है और ये बात जाहिर होती है कि नमाज में आने के बाद लुकमा दिया है, तकबीर तहरीमा कहने के बाद दिया है, जब तो ठीक है, वरना नमाज फासिद हो जाएगी और फिर से पढ़ना फर्ज होगा। जो वाजिबात में सजदे सौ में ऐसे मसाइल आए थे, जैसे इमाम कायदा उला करना भूल गया और खड़ा हो गया, तो अब कोई लुकमा नहीं देगा। जो लुकमा देगा, इमाम जब तक बैठने से करीब है लुकमा देंगे, लेकिन इमाम साहब खड़े होने के करीब हो गए या खड़े हो गए तो अब लुकमा देने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इमाम का बैठना जायज नहीं। अब जो अल्लाह अकबर कहेगा वो नमाज में कलाम किया, उसने बात की, वो नमाज से बाहर हो जाएगा। तो वो बाहर हो गया, गैर मुक्तदी हो गया लुकमा देते ही, इक्तिदा से निकल गया इमाम साहब की। अब इमाम ने उनका लुकमा ले लिया तो इमाम की नमाज इसलिए फासिद हो जाएगी कि इमाम साहब ने गैर मुक्तदी का लुकमा लिया, और गैर मुक्तदी का लुकमा लेने से नमाज फासिद हो जाती है, जैसा कि अभी आपने सुना। इसी तरह आह, ओ, उफ, तुफ, ये अल्फाज दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज से रोया और हुरूफ पैदा हुए, इन सब सूरतों में नमाज टूट गई। और अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले और आवाज और हुरूफ नहीं तो हर्ज नहीं। किसी को कमर में दर्द था, नस वगैरह चढ़ गई थी, या कोई और प्रॉब्लम था, दर्द था घुटने में, तो होता यह है कि जब हम उठते हैं नमाज में या गहरे नमाज में तो एक आ निकालते, आ। तो चलो आप नमाज के अलावा करते रहो, लेकिन नमाज में किया तो ऐसा तो नहीं उसको आह करने से उसके दर्द में कुछ रिलीफ हो गया, कुछ उसको राहत हो गई, और ये बेसाख्ता नहीं हुआ, उसके अपनी मर्जी से होता है। बहुत इत्मीनान में बंदा कहता है आ, तो ये कसदन हुआ है, बिल इरादा आवाज निकाली गई है। और हालत नमाज में दो हर्फ बोलने से नमाज टूट जाती है, जैसे आ, अब, तब, वाह, इसमें दो वर्ड पाए जाते हैं तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह तकलीफ में रोया, खाली आंसू निकले दर्द वगैरह से, तो आंसू निकलेंगे तो नमाज नहीं जाएगी। लेकिन रोने में आवाज पैदा हो, जब बंदा रोता है तो बच्चे रोते हैं तो आवाज पैदा होती है, बड़ा भी रोता है सदमे में तो इस तरह की एक मुनफरिद आवाज निकलता है, वो तो उसमें दो हर्फ पाए जा रहे, नमाज फासिद हो गई। तो हालत नमाज में आवाज से रोना नमाज को तोड़ देता है। लेकिन हाँ, अगर कोई हालत नमाज में खौफे खुदा से रोया, अल्लाह के डर से रोया, आवाज भी पैदा हुई, तो चूंकि खुशू व खुजू की बुनियाद पर है तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी, सुभान उसकी अल्लाह। नमाज हो जाएगी। अल्लाह ऐसी नमाज नसीब फरमाए। आमीन आमीन। इमाम आजम अबू हनीफा इमाम साहब ने सूरह जिलजाल पढ़ दी ऐसा में, सुबह सादिक हो गई, वो रोते ही रोते पूरी रात उन्होंने गुजारी। तो हालत नमाज में खौफ खुदा इमाम, या उसने कोई आयते गजब सुनी नमाज में तिलावत की, या इमाम ने पढ़ी और इस पे रिक्कत तारी हो गई, जिक्र आखिरत अजाब का तज़किरे की बुनियाद पर, आवाज आ रही है? हेलो टाइम था तो फिक्र आखिरत से आप ले लीजिए, फिक्र आखिरत से। हाँ, तो
फिक्र आखिरत में रोया तो ये रोना उसकी आवाज को मुतासिर नहीं करेगा, इसकी इजाजत है। इसी तरह मरीज की जबान से बेख्तियार आओ निकली तो नमाज फासिद ना होगी। वहां दर्द या मुसीबत से आओ निकली तो नमाज फासिद हो जाएगी। वजह है कि वहां बेसाख्ता नहीं निकली है, बिल इरादा निकली है। और मरीज की जबान से अगर बेसाख्ता कुछ अल्फाज निकल जाए, जैसे डेखार आती है, जमाई आती, रोकते रोकते और आवाज निकल गई, खांसी आती है, छींक आती है, तो कुछ वर्ड तो पैदा होते हैं ना, लेकिन क्या उस पर हमारा कंट्रोल है? क्या हम उसे रोक सकते हैं? तो वो बिल इरादा नहीं है, बेसाख्ता है। आवाज नहीं आ रही, आवाज। हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं इम्तियाज आ रही। जी आवाज तो आ रही है, हाँ आ रही है आवाज। जी। तो डेखार में, छींक में, जमाही में जो अल्फाज अदा होते हैं वो बेसाख्ता है, वो हमारे काबू से बाहर है, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, तो उससे नमाज में असर नहीं होगा। इसी तरह मरीज की जबान से भी बेसाख्ता अगर अल्फाज निकल गए तो नमाज नहीं टूटेगी। फूकने में अगर आवाज पैदा हो तो मिसले सांस के नमाज नहीं टूटेगी, मगर कसदन करना मकरूह है। अगर फूकने में दो हर्फ पैदा हो, जैसे उफ तो नमाज फासिद हो जाएगी। कुछ लोग की आदत होती है चलते चलते सीटी मारते हैं, मुंह से जो आवाज निकालते रहते हैं, नमाज में भी ऐसे ही आवाज निकाल दिया, सीटी की आवाज पैदा हुई तो उसमें दो हर्फ पैदा हुए, नमाज फासिद हो जाएगी। नमाज में कुरान शरीफ से देखकर या मेहराब वगैरह में सूरह मुजम्मिल लिखी है या कोई और जो है आयतें लिखी है, उसको देखकर पढ़ना पाया गया तो नमाज टूट जाएगी। क्योंकि हालत नमाज में एनाफ में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक नमाज में कुरान शरीफ देखकर पढ़ने से या मेहराब वगैरह में देखकर पढ़ने से नमाज जाती रहती है। अमले कसीर कि ना अमाले नमाज से हो, ना नमाज के इस्लाह, ना नमाज की इस्लाह के लिए किया गया हो, मुफ्तिद नमाज है। अमले कसीर यानी ज्यादा काम, एक होता है अमले कलील, थोड़ा काम। तो हालत नमाज में किसी ने अमले कसीर किया तो फरमाते अमले कसीर वो जो ना अमाले नमाज से हो, यानी जो न नमाज के फेल से जिसका ताल्लुक हो और न नमाज की इस्लाह के लिए किया गया हो, वो अमले कसीर है। दूर से देखने वाले को अगर ये शक हो हालत नमाज में किसी ने कोई काम किया, अब दूर से देखने वाले को ये गुमाने गालिब हो कि ये शख्स नमाज में नहीं है, तो उसकी नमाज टूट जाएगी। अब भले कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, आप अकेले हॉल में नमाज पढ़ रहे हैं और आपने दोनों हाथ से ऐसे बटन लगाए या दोनों हाथ से अभी मैं नमाज में हूं और अमामा ऐसे सही कर रहा हूं और इलियास अशरफी साहब आ जाए मुझे देखें, तो ख्याल यही जाएगा कि इस वक्त ये नमाज में तो नहीं है। घुमाने गालिब यही होगा कि मैं नमाज में नहीं हूं। तो हालत नमाज में कोई ऐसा काम करना कि दूर से देखने वाले को गुमाने गालिब हो कि ये शख्स नमाज में नहीं है, तो वो अमले कसीर है, वो ज्यादा काम में शामिल है, वो नमाज टूट जाएगी, नमाज से बाहर हो जाएगा। और दूसरा है कि अमले कलील। अमले कलील यानी ऐसा काम कि दूर से देखने वाले को डाउट हो, शक हो कि नमाज में है या नहीं, तो ये अमले कलील कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पर एक हाथ से मैं बटन लगाया हालत नमाज में, एक हाथ मेरा बंधा हुआ है, मैं कयाम में ऐसे बटन मैंने लगाई, अब कोई देखेगा तो उसको डाउट होगा, बहुत होगा, तो नमाज में है या नहीं, तो ये अमले कलील है। अमले कलील में नमाज हो जाती है, कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। लेकिन वो जब क्यों ना अमाले नमाज से हो, ना नमाज की इस्लाह के लिए किया गया हो।
आमाल नमाज जो कुछ हम रुकू सुजूद कौमा जलसा करते हैं या कुछ और भी ऐसे हरकतें हैं जो नमाज में कभी कभार पाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप तहर्री करके नमाज पढ़ रहे थे, इस्तिक़बाल किबला में बताया था, आपका ख्याल बदल गया दूसरी रकत में किबला इधर नहीं है मेरे राइट साइड है, तो अब नमाज में आपको घूम जाना, फौरन घूम जाना फर्ज है। तो ये जो घूम रहे हैं आप, ये आमाले नमाज से इसका ताल्लुक है, क्योंकि नहीं घूमेंगे तो नमाज टूट जाएगी। अब कोई देखे और बोले यार घुमाने गालिब हो रहा है, आप नमाज में नहीं हो, तो कैसे घुमाने गालिब हो रहा है? उसकी ये हरकत ही नमाज की है, नहीं घूमेगा तो नमाज से ही बाहर हो जाएगा। इसी तरह हालत नमाज में दो सफ, हालत नमाज में दो सफ के अंदर अंदर चलने की इजाजत है। दो सफ से मुराद ऐसा नहीं कि लंबी ऐसी सफ, दो सफ एक चटाई की जो चौड़ाई होती है, हम खड़े होते नमाज में, वो एक सफ की साइज है। ऐसे ही दो सफ के अंदर अंदर नमाज में चलने की इजाजत है। अब मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे थे, बच्चे ने वहां आकर पेशाब कर दिया, तो वो तो निजासत गलीजा है। अब आप वहीं अगर सजदा करेंगे तो आपकी नमाज कैसे होगी? तो अब आपको उज़्र शरई है, नमाज में चलने की इजाजत है। आप किबला रुख भी जो है दो सफ की मिकदार के अंदर अंदर जा सकते हैं, दाएं बाएं भी जा सकते हैं। अब नमाज में कोई चल रहा है, अब कोई देखेगा तो उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। वजह यह है कि ये नमाज की इस्लाह के लिए किया जा रहा है। ये मिसाल जो मैंने दो अर्ज की समझ में आ रही है आपको? ये चलना जो है ये नमाज को बचाने के लिए, वहां अमले कसीर का हुक्म नहीं आएगा। तो अमले कसीर की ये तारीफ अच्छे से याद रखें, जो ना आमाले नमाज से हो, ना नमाज की इस्लाह के लिए किया गया हो। ऐसा काम किया कि दूर से देखने पर गुमाने गालिब हो कि वो नमाज में नहीं है, ये नमाज में नहीं है, तो भले कोई नहीं देखता, अगर रहता तो उसका गुमान यही होता, तो नमाज फासिद हो गई। जैसे मैंने दो मिसाल दी, अमामा दोनों हाथ से सही किया, दोनों हाथ से बटन लगा रहा है, तो देखने वाले को गुमाने गालिब यही होगा कि नमाज में नहीं है, नमाज जाती रहेगी। अमले कलील यानी एक हाथ से कोई काम किया, जैसे एक हाथ से बटन लगाया, या सजदे में चटाई वगैरह बहुत पुरानी थी तो उसके रेशे पेशानी पर चुभ गए तो बेचैनी होने लगती है। जुमा वगैरह में बहुत कसीर बड़ी जमात थी, कोई ताखीर से आया, उसको रोड पर सजदा करना पड़ा, दस्त यहाँ पेशानी पे नाक पे लग गया, बेचैनी हो रही है, तो अमले कलील के साथ ऐसे उसने छोड़ा दिया नमाज में, या पसीना बह रहा अमले कलील के साथ ऐसे हटा दिया, या मच्छर मक्खी हैरान कर रहे थे अमले कलील के साथ उड़ा दिया, तो कोई हर्ज नहीं है। कायदा ये है, कायदा कुल्लिया ये है कि हर वो अमले कलील जिससे उसकी अपनी नमाज का फायदा है, आईने नमाज में उसको कर सकते हैं। अब ये पसीने से बेचैनी होती है ना, तो उंगली से इस तरह से पोंछ सकता है, ऐसा नहीं कि उसको मस्जिद में झटक दे, या मक्खी वगैरह हैरान कर रही है, मच्छर काट रहा है, तो उसको हटा सकता है, बल्कि अगर वो शिकार हो गया तो उसको मार भी सकता है, वो उसकी नमाज पे कोई असर नहीं आएगा। लेकिन शर्त ये कि अमले कलील के साथ हो, एक हाथ से हो, और एक रुक्न में 3 मरतबा ना हो, क्योंकि 3 मरतबा होगा जब भी कसीर हो जाएगा और नमाज फासिद हो जाएगी। अब इसमें अभी आपने कायदा कुल्लिया सुना कि हर वो अमले कलील जिसमें नमाजी का फायदा है, आईने नमाज में आप कर सकते हैं। अब किसी की मोबाइल की रिंग बज गई, कॉल आ गया, होना तो ये चाहिए कि हम मस्जिद में आए, नमाज शुरू करने से पहले अपना स्विच ऑफ करें, या कम से कम उसको जो है साइलेंट मोड पर डाल दें, या जो कॉल कर रहा है उसको भी इसका लिहाज रखना चाहिए कि मैं जिसे फोन कर रहा हूँ वो नमाजी है, तो नमाज के वक्त में काय को फोन किया जाए, काय को कॉल किया जाए, इन सब का एहतमाम होना चाहिए। लेकिन
ना आपको याद रहा ना उसे याद रहा, और आप नमाज में रिंग बज रही है तो एक हाथ से मोबाइल ना निकाले, आप एक हाथ से बटन आप साइड का दबा दें, प्लीज थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाएगा, रिंग ऑफ हो जाएगी। तो ये अमले कलील के साथ करने की इजाजत, क्योंकि हर वो काम जिससे नमाजी का फायदा है अमले कलील के साथ आप उसे कर सकते हैं। तो इसमें आपका फायदा है ना, अगर वो बचता रहा तो आपकी भी नमाज में खलल होगा और मस्जिद में जितने सबकी नमाज में खलल होगा। और फिर सलाम फेरने के बाद लोग कितनी तल्ख नजर से आपको देखेंगे, आप ही जानते हैं। कोई जलाल में आ गया तो आपको कुछ सुना भी देगा। तो नमाज में आप उसको अमले कलील के साथ बंद कर सकते हैं। नमाज के अंदर खाना पीना मुतलकन नमाज को फासिद कर देता है। नमाज में किसी ने एक दाना भी हलक के नीचे उतारा, नमाज टूट जाएगी। पानी का एक बूंद भी पिया, नमाज टूट जाएगी। जैसे जुमा में ताखीर से है, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश शुरू हो गई, पानी का कतरा जो ऐसे आया, होठ पर आया, ठंडा ठंडा मीठा मीठा शेरी शेरी लगा, उसने मुंह में ले लिया, हलक के नीचे उतार लिया, नमाज जाती रही। एक तो ये हुआ, ये तो कोई करता नहीं। लेकिन दूसरा जो पहलू है, पहले से कोई चीज इफ्तार वगैरह के मौके पर माह रमजान में मगरिब में ये कंडीशन बाज़ मर्तबा लोगों के साथ हो जाती है। कुल्ली वगैरह अच्छे से किए नहीं, जमात में पहुंचे, अब मखरज पर जब जबान लगती है तो चने का छिलका आ गया, कोई और चीज जबान पर आ गई, तब सोचे उसको करे क्या, उसको हलक के नीचे उतार दिया। तो याद रखें, अगर वो चने की मिकदार से कम है, उसका साइज चने की मिकदार से कम है तो नमाज मकरूह होगी। यहाँ चने से मुराद देसी चना है। जब भी मसाइल शरिया में चने की मिकदार का पैमाना बयान होगा तो वहां देसी चना होगा। एक होता है काबुली चना, वो क्रीम कलर का आता है, वो थोड़ा मोटा रहता है, वो मुराद नहीं है, देसी चना मुराद है। तो चने की मिकदार से कम है और निगल गया तो नमाज मकरूह होगी। मकरूह से मुराद तहरीमी होगी। और अगर चने की मिकदार के बराबर या उससे ज्यादा है और उसको हलक के नीचे उतार लिया तो नमाज फासिद हो जाएगी। मौत, जुनून, बेहोशी से नमाज जाती रहती है। हालत नमाज में किसी को मौत आ गई तो बहुत अच्छी मौत है, लेकिन हुक्म यह है कि वो उसकी नमाज टूट गई। जुनून, हालत नमाज में किसी का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया, पागल हो गया, नमाज जाती रही। बेहोशी, कोई सदमे की खबर उसके तक पहुंची, वो नमाज में था, या कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जैसे वो कोई फिट का मरीज है, मिर्गी, नमाज में दौरा पड़ा, गिर गया, बेहोश है, वो नमाज जाती है। अगर वक्त में आराम हो जाए तो अदा पढ़े। जो नमाज पढ़ रहा था अगर उसका वक्त बाकी है और उसका प्रॉब्लम दूर हो गया, आराम हो गया, तो अदा पड़ेगा। और अगर वक्त निकलने के बाद आराम हुआ तो बनियते कज़ा पड़ेगा। और इसी हालत में 6 नमाज का वक्त गुजर गया, यानी छठी का वक्त भी खत्म हो गया, तो अब फरमाते हैं वो 6 के 6 की कज़ाएं भी माफ होंगी। बल्कि इस नाजुक हालत में जितनी नमाजें जाएंगी सब की कज़ा माफ होगी। मिसाल के तौर पर कोई फज्र की नमाज में या नमाज से पहले बेहोश हुआ, फज्र का वक्त गुजरा, होश में नहीं आया, जोहर, अस्र, मगरिब, ऐसा, रात में उसको 4 बजे होश आ गया, तो चूंकि अभी वक्त ऐसा बाकी है तो ये 5 वक्त की नमाज उसके जिम्मे पढ़ना फर्ज होगा, 4 कज़ा की और ये 5वीं ऐशा की। लेकिन ऐशा का वक्त भी गुजर गया, 5 वक्त खत्म हुआ, दूसरे दिन फज्र का वक्त खत्म होने से पहले होश हो गया,
तो 5 कज़ा और ये फज्र भी उसको पढ़नी होगी। लेकिन दूसरे दिन की भी फज्र का वक्त खत्म हो गया और होश में नहीं आया, छठी का वक्त खत्म होने के बाद में होश में आया, तो सारी 6 के 6 की कज़ाएं उस पर साकित हो जाएंगी, माफ हो जाएंगी। बल्कि अगर इसी नाजुक हालत में 2-3 महीने 6 महीने भी गुजर गए, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, दिमाग में चोट आई, कोमा में चला गया, वो 6 महीना बेहोश रहा, 6 महीने बाद होश में आया, तो 6 महीने की कज़ाएं उस पर माफ होंगी, उसको पढ़ने का हुक्म नहीं होगा क्योंकि वो होश में नहीं था। कसदन वजू तोड़ा या कोई सबबे गुस्ल पाया गया, नमाज जाती रही। जानबूझकर किसी ने वजू तोड़ दिया तो नमाज टूट जाएगी। अब जानबूझकर कोई वजू तो तोड़ेगा नहीं, लेकिन कोई ऐसा मौका आ गया, जैसे एक फुंसी थी नाक पर, वो चुभन हो रही थी, उसको ऐसे मसल दिया, खून निकल गया बहकर, तो अब वजू जानबूझ के तोड़ना पाया गया, नमाज जाती रही। लेकिन फितरी तकाजे के तहत खुद ब खुद वजू टूट गया, जैसे हवा खारिज हो गई, तो खुद ब खुद वजू टूटा, तो याद रखें उसकी नमाज नहीं टूटी, वो जाए वजू करके आए, जहां से नमाज छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट ले, पढ़े, वहीं से उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इसको कहते हैं बिना, और बिना की जो है वो 14 या 13 कुछ शर्तें हैं, 13 से 14 शराइत हैं, वो सब के सब पाई जाएंगी, तो हुक्म ये है कि जहां से छोड़ा वहीं से पढ़ेगा। और फरमाया सदरुल शरिया रहमान बार शरीयत में वो सारी शर्तें पाई भी जा रही हैं, जब भी नए सिरे से पढ़ना अफजल है। तो जब नए सिरे से पढ़ना अफजल है तो फिर वही करना चाहिए, फजीलत पर अमल किया जाए। किसी रुक्न को तर्क किया जबकि उसको उसी नमाज में अदा न कर लिया हो, नमाज जाती रही। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकत में या दूसरी रकत में या किसी भी रकत में एक ही सजदा किया, अब आपको ख्याल आया किसी रकत में या कायदा आखिरा में कि मैंने फला रकत में एक ही सजदा किया है, और एकदम आपको एतमाद है, तो फरमाया एक सजदा और कर ले, एक सजदा और कर ले, उस रुकन को अदा कर ले, लेकिन सजदे सा उस पर वाजिब होगा, क्योंकि फर्ज की अदायगी में 3 सुभान अल्लाह की ताखीर पाई गई, तो सजदे सौ बहरहाल वाजिब होगा, लेकिन नमाज उसकी हो जाएगी। कायदा आखिरा के बाद सजदा नमाज या सजदा तिलावत याद आया और उसको अदा किया, और अदा करने के बाद फिर कायदा ना किया तो नमाज ना हुई। जैसे भी मैंने मिसाल दी, कायदा आखिरा में आपको याद है कि मैंने फला रकत में सजदा नहीं किया है, एक ही किया है, तो आप करेंगे तो दोबारा आपको कायदा आखिरा करना होगा, यानी पहले एक सजदे सौ का एक कायदा करेंगे, सजदे सौ का, और फिर एक कायदा करेंगे, वो कायदा आखिरा होगा। यही हुक्म सजदे तिलावत में भी होगा। वक्त है? जी 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 इम्तियाज भाई है, वक्त है। हालत नमाज में सांप बिच्छू को मारने से नमाज नहीं टूटती, जबकि न 3 कदम चलना पड़े न 3 ज़र्ब की जरूरत हो। हालत नमाज में आप सांप बिच्छू को मार सकते हैं, लेकिन ये कब है कि जब उसके जरर पहुंचाने का अंदेशा हो, यानी किसी आपको काट लेगा वरना किसी और को काट लेगा। अब जाहिर सी बात है, मस्जिद में आ गया या अवामी जगह पर आ गया तो उसकी फितरत है डसना सांप की बिच्छू की, वो डसेगा, तो आप नमाज तोड़ कर भी उसको मार सकते हैं, बल्कि नमाज में भी मार सकते हैं, नमाज नहीं टूटेगी। लेकिन कब? जबकि न 3 बार हमला करना पड़े न 3 कदम चलना पड़े। 1 से 2 कदम चलकर 1 से 2 ज़र्ब लगाकर आप मार सकते हैं तो मारे, और अगर 3 बार ज़र्ब लगाना पड़ेगा तो नमाज से बाहर हो जाएंगे, लेकिन नमाज तोड़कर भी मारने की इजाजत है। ये कब है कि उसको जरर पहुंचाने का
آپ کو اندیشہ ہو. ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی 3 مرتبہ اس طرح کھجایا کہ 3 مرتبہ ہاتھ ہٹانا پایا جائے. جیسے ہم قیام میں ایک یہاں کھجایا 1 ہو گیا، پھر یہاں کھجایا 2 ہو گیا، پھر داڑھی پہ کھجایا 3 ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی. دوسری کنڈیشن یہ کہ ہاتھ ایک ہی بار ہٹایا لیکن 3 الگ الگ کھجایا، آنکھ پر کھجایا، پیشانی پہ کھجایا یا کاندھے پر کھجایا، تو 3 مرتبہ ہاتھ ہٹانا پایا گیا، نماز جاتی ہے. تیسری حالت یہ کہ ایک ہی جگہ ہاتھ رکھا اور یہاں 3 بار کھجایا، تو یہ 3 نہیں مانا جائے گا، یہ ایک ہی مانا جائے گا. ہاں اس کو اتنا دیر تک کھجاتا رہا کہ 3 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا وقت لگا، تو اب عمل کثیر ہو جائے گا اور نماز فاسد ہو جائے گی. تو ایک رکن میں جیسے قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، جلسہ رکن ہے، دوسرا سجدہ رکن ہے، قاعدہ رکن ہے. تو ایک رکن میں 1 سے 2 بار اگر پریشانی کچھ ہے تو کھجا سکتا ہے. قیام میں کھڑے رہنے کی حالت میں 1 سے 2 بار ہو گیا، اب رکوع میں 1 سے 2 بار ہو گیا، تو رکوع اور قیام کا یہ پلس نہیں ہوگا، شمار نہیں آئے گا. ایک رکن میں ایک ساتھ 3 بار نہیں ہونا چاہیے. اچھا کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو خارش کی بیماری ہوتی ہے، اسکین میں چمڑی میں ان کو کھجلی ہوتے رہتی ہے، وہ بیچارے کھجاتے ہی رہتے ہیں. اب جب ان کو یہ بیماری ہے تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا، ان کے لیے عذر شرعی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. حالت نماز میں تکبیرات انتقال میں تو اللہ کو اللہ کہا، اکبر کو اکبر کہا یا اکبار کہہ دیا، یہ تینوں غلطی اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، نماز فاسد ہو جائے گی. اذان میں ایسی غلطی ہوئی تو وہ اذان نہیں، نہ اس کا جواب دیا جائے گا. تکبیر تحریمہ کسی نے ایسا کہا تو اس کی نماز بھی شروع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ غلطی نمازی کو نماز سے باہر کر دیتی ہے. تو جو تکبیر سے نماز میں بندہ انٹری کرتا ہے، اس تکبیر میں ایسا بگاڑ پیدا ہوا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے. قرات قرآن کی تلاوت میں ایسی غلطی ہوئی کہ معنی بگڑ جائیں، گزشتہ آپ نے سنا، نماز فاسد ہو. اسی طرح اذکار نماز، جو نماز میں ذکر ہے، تکبیرات انتقال ہے، تسبیحات ہیں، اگر سے وہ مستحب ہیں، لیکن جو مستحب ہیں ان میں بھی اگر ایسا بگاڑ ہوا کہ معنی بگڑ جائیں، ایسی غلطی ہوئی تو یہ نہیں دیکھا جائے گا تو مستحب میں غلطی ہوئی ہے، حکم یہی ہوگا نماز فاسد ہو جائے گی. جیسے ابھی میں نے مثال دی، اللہ اکبر کہا، رکوع میں جاتے وقت یہ مستحب ہے کہنا، یہ تکبیر، لیکن معنی بگڑے تو چاہے وہ مستحب ہو، وہ امور یا فرض و واجب ہو، نماز ٹوٹ گئی. نمازی کے آگے سے چاہے آدمی گزرے چاہے جانور، نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ گزرنے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے. حدیث شریف میں آیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے پر کیا عذاب ہے. اگر جان جاتا تو سرکار فرماتے ہیں 100 سال کھڑا رہنا پسند کرتا. ایک روایت میں زمین میں دھسنا پسند کرتا، لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا. لوگ آج منٹ ہاف منٹ کا انتظار ان کو پسند نہیں ہوتا ہے، اتنے بے چین ہوتے ہیں، اور دیکھ رہے ٹائم زیادہ لگے گا تو ماد اللہ گزر بھی جاتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں ہم نمازی کے آگے سے گزر رہے ہیں، چلے جائیں. یہ کیوں ہے؟ عذاب نہیں معلوم نا. عذاب معلوم ہو تو سرکار اسلام نے فرمایا 100 سال کھڑا رہے. ابھی سیکنڈ کھڑا رہنا وبال سمجھتے ہیں. اچھا کوئی کھڑے بھی رہتے تو کیسے؟ وہ بار بار دیکھتے رہیں گے، یعنی سامنے والے کو ٹارچر کرتے رہیں گے، بھائی جلدی سلام پھر ہم کو بہت جلدی.
या कुछ ऐसे बेचैनी का इजहार करेंगे, देखेंगे खुद जाएंगे, और कुछ तो ऐसे जो नमाजी के सामने चेहरा करके हाथ बांध के खड़े हुए, जैसे बहुत शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं। जबकि मसला ये है कि किसी नमाजी के आगे चेहरा करना मकरूह तहरीमी है, करीब करीब हराम के। सारा वबाल इस चेहरा करने वाले पर आएगा। अगर कोई चेहरा करके पहले से बैठा है और कोई नमाज पढ़ने आए उसके मुंह के सामने नमाज शुरू कर दे, तो अब इसकी अपनी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। लेकिन पहले से चेहरा नहीं था, बाद में जैसा मैंने मिसाल दी हाथ बांध के खड़े हो गए उसके सामने, तो अब मकरूह तहरीमी का वबाल उस पर नहीं इस पर आएगा। इसका ये फेल, इसकी ये हरकत मकरूह तहरीमी होगी। तो फरमाते हैं नमाज नहीं टूटती। बाद लोग समझते हैं नमाज टूट जाती, नमाज नहीं टूटती, गुजरने वाला गुनहगार होता है। अब नमाज पढ़ने वालों को भी चाहिए जो बीच रास्ते पे नमाज ना पढ़े, एकदम दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, पूरी मस्जिद खाली, आखिरी सफ में बिल्कुल जहां से लोग आते जाते हैं वहां नमाज पढ़ेंगे, तो कभी कभी ख्याल भी नहीं होता है, तो फिर ये भी वबाल के मुस्तहिक होंगे। ऐसी जगह पढ़ें कि वहां से लोग ना गुजरे। और अगर सुतरा रख दिया है, नमाजी के आगे कोई आड़ है, तो उस आड़ के आगे से गुजरने की इजाजत है। सुतरा कम से कम 1 हाथ ऊंचा, 1.5 फीट ऊंचा और 1 उंगली की मिकदार मोटा हो, और ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ ऊंचा हो। ये मिकदार उस चीज की है जो बतौर सुतरा बनाई जाए। जैसे बाज मसाजिद में सुतरे वगैरह के लिए जालियां बनाई जाती हैं, कुछ टेबल बनाए जाते हैं, तो उनकी इतनी हाइट हो, कम से कम 1 हाथ, 1.5 फीट और ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ। लेकिन सुतरा दीवार का भी हो सकता है, सवारी का भी हो सकता है, कार का भी हो सकता है, बैग का भी हो सकता है, क्योंकि वो 1 हाथ से ऊंचा तो है, सुतरा हो जाएगा। सुतरे के लिए जरूरी है कि वो अपनी कुदरत से खड़ा हो। जैसे अब मुबल्लिगीन हरी शॉल रखते हैं, चादर रखते हैं, या और लोग भी रुमाल वगैरह हमारे मसाइल इस्तेमाल करते हैं। अब कोई नमाज पढ़ रहा है और इन साहब को जाना है, तो मुबल्लिग साहब अपनी चादर लटका दें और ऐसे गुजर जाए, तो ये इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये चादर जो लटक रही हो हमारे हाथ के सपोर्ट से लटक रही, उसको छोड़ दो आप, तो क्या 1 हाथ ऊंचा रहेगी? वो नहीं रहेगी। अगर 3-4 चादर थोड़ा ऐसे फुला फुला के आप उस पर रख दो तो 1 हाथ ऊंचा हो गया, अब सुतरा हो जाएगा। तो बगैर सुतरे के आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई गुजर रहा है, तो हदीस शरीफ में आया वो गुजरने वाला शैतान, उसको रोको, यानी उसकी ये हरकत शैतानी, उसको रोका जाए। अब कैसे रोकेंगे? तो करीब से गुजर रहा है तो आप आंख से भी इशारा कर सकते हैं, सर से भी इशारा कर, हाथ से भी आप इशारा। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, मेहरबानी करें, रुक जाएं थोड़ा सा। जी जी बता जी। दीजिए। तो वहां कोई आड़ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं रहती, किनारे आप पढ़ रहे हैं। तो अब अगर कोई गुजर रहा है तो आप उसको हाथ के इशारे से भी रोक सकते हैं, हाथ की इशारे से भी रोक सकते हैं, सर के इशारे से भी रोक सकते हैं। हाथ के इशारे से रोकेंगे तो आप उसको ऐसे कर सकते, लेकिन आपका हाथ जाए भी और वापस भी आ जाए और 3 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का वक्फा ना गुजरे। इसी तरह से आप ऊंची आवाज में किरात भी कर सकते हैं, जहर से। जैसे आप सूरह फातिहा पढ़ रहे थे
इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे पहुंचे तो कोई गुजरने लगा तो एक आयत आप ऊंचा पढ़ दें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ताकि वो बाज आ जाए, आवाज सुनेगा तो वो समझ में आ जाएगा कि मैं गलती कर रहा हूं। तो इस तरह से रोका जा सकता है। अब अगर कोई बड़ी मस्जिद में है या मैदान में है, बड़ी मस्जिद में या मैदान में है, तो अगर सुतरा नहीं भी है तो जब भी 3 सफ के आगे से गुजरने की इजाजत। 3 सफ ये एक तखमीना है, अंदाजा है। इसकी सही मिकदार ये है कि हम कयाम में रहें और सजदे के मकाम पर जहां पेशानी रखेंगे वहां नजर रखें, तो हमारी निगाह कहाँ तक फैलती है? तकरीबन 3 सफ तक फैलती है। एक सफ को जिसमें हम खड़े, 2 सफ और ले लो, तो ये 3 सफ की मिकदार ये जजमेंट से बताया गया, लेकिन इसकी सही मिकदार ये है कि मौज़े सुजूद पर जहां पेशानी आप रखेंगे वहां नजर रखें और फिर जहां तक नजर फैलती है उसके आगे से गुजरने की इजाजत है। ये मैदान में और बड़ी मस्जिद में। हिंदुस्तान में बड़ी मस्जिद नहीं है। मस्जिद हरम शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद अक्सा है और चंद मसाजिद इमाम सुन्नत ने फतह रज़िया शरीफ में बयान किया। हिंदुस्तान में दिल्ली की जामा मस्जिद भी शरीयत मुताहरा के नजदीक, हैदराबाद की मक्का मस्जिद भी बड़ी मस्जिद के शुमार में। दिल्ली की जामा मस्जिद में कोई आखिरी सफ में नमाज पढ़ रहा है और सफ़े अव्वल से कोई गुजरा और उसके गुजरने में कोई आड़ नहीं आया, ना आदमी का आड़ आया, ना कोई पिल्लर आया, ना कोई चेयर वगैरह का कोई आड़ नहीं पाया गया, तो वो आप अव्वल सफ में जो गुजर रहा है वो भी गुनहगार होगा। तो ये नमाज तोड़ने वाली चीजें थी जो आपके सामने मुकम्मल तौर पर इख्तिसार के साथ बयान हुई कानून शरीयत की मदद से और दूसरी किताबों के जरिए। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे। ये चीजें पाए जाने से नमाजी नमाज से बाहर हो जाता है, उसकी नमाज टूट जाती है। अब इस पर कुछ सवाल हो तो कीजिए, इल्म में होगा तो जवाब दें। इम्तियाज भाई, आपने ये कहा था कि 2 लफ्ज जो है अगर अदा हो तो नमाज टूट जाएगी। तो अब उसमें अगर बेख्तियार उठते वक्त बेख्तियार उसके मुंह से निकला अल्लाह, यानी उसको कोई चमक आ गई या कोई तकलीफ पहुंची तो उसकी जबान से अल्लाह निकल गया, तो अब ऐसी सूरत में क्या हो? इसको इंशाल्लाह कल के लिए रखते हैं, कल बताता हूँ। हालांकि मैंने बारिश शरीयत में देखा था। जी जी जी। तो अभी तलाश करने में टाइम लगेगा, अभी फौरन नजर में तो नहीं आएगा ना। है चलेगा, बेहतर बेहतर, कोई मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हजरत, आपने कहा कि सांप जो अगर नमाज में दिखाई दे तो उसे मार सकते हैं, तोड़ के भी उसे मार सकते हैं। तो नमाज किस तरह तोड़ने का तरीका क्या है? नमाज जब भी तोड़ेंगे तो सीधी जानिब सलाम फेर देंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप नमाज से बाहर हो गए, फरोज़े बेसो नहीं आपका अदा हो गया, अब आप उसको मार सकते हैं। या और भी कोई, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे नमाज पढ़ रहे थे, आपका इम्कान था कि ट्रेन रुकेगी लेकिन ट्रेन चल पड़ी, हॉर्न हो गया, तो अब आप अगर सलाम कायदा आखिरा तक जाएंगे तो मसला हो जाएगा। तो सलाम फेरने की इजाज़त है, सीधे अनिफ सलाम फेर दे, नमाज से आप बाहर हो जाएंगे। इस तरह से जब भी उज़्र पाया जाएगा इस तरह से नमाज तोड़ेंगे। अगर ऐसे ही मादल्ला कोई तोड़ दिया और चल पड़ा तो हराम काम का मुर्तकिब होगा, गुनहगार होगा, तौबा लाज़िम है। अस्सलाम वालेकुम। और कुछ? वालेकुम सलाम। अच्छा इम्तियाज़ भाई, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और उसके आगे दूसरा शख्स एक नमाज पढ़ रहा है, अब आगे वाले की नमाज जब मुकम्मल हो गई तो
اس کے سامنے سے کیا وہ ہٹ سکتا ہے کیا پوری نماز ہوئے تک کا انتظار کرنا پڑے گا؟ ہٹ سکتا ہے، دائیں بائیں وہ جا سکتا ہے بالکل. اگر جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے بالکل سامنے نماز پڑھ رہا ہے، وہ فارغ ہو گیا سلام پھیر کے، تب وہ دائیں بائیں جا سکتا ہے. کراسنگ منع ہے، کراس کرنا، وہ گزرنے میں پورا ایک داخل دم نہیں رائٹ ہوگا سے جو ایک آپ دم بتا. لیفٹ جانا پڑتا ہے. ہاں، اچھا یا اچھا. رائٹ نکل سکتا ہے یا لیفٹ نکل سکتا ہے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے آ کے سترا بن کے کھڑا ہو سکتا ہے کیا کوئی؟ ہاں، سترا بن کے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. جیسے کسی کو جانا ہے، اب آپ اس کی مدد کریں، اس سے جلدی ہے تو آپ جو ہے نمازی کے آگے کھڑے ہو جائیں، وہ آپ کے سامنے سے گزر جائے، پھر آپ جاتے ہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں. جی جی. یعنی امتیاز بھائی اگر بندہ اگر جہاں سے آیا ہے، یعنی اگر کسی کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے سترے کے طور پر، تو جہاں سے آئے وہیں سے اس کو لوٹنا ہے اگر وہ بھی ہٹنا چاہتا ہے تو. جی، وہ دوسری جانب جانا چاہتا ہے، جہاں سے آیا اس کے اپوزٹ سائڈ جانا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ ہے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائے، وہ 2-4 منٹ ذکر و اذکار کرے، اب چلا جائے. اب وہ گزرنے میں نہیں آئے گا، ہٹنے میں آئے گا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا امتیاز بھائی کہ اگر نماز میں ٹوپی گر جاتی ہے تو اس کو پہن لینے سے یہ عمل کثیر ہوگا یا نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہاتھ سے آپ اٹھا کے رکھ لیں، عمل قلیل ہے وہ، لیکن دونوں ہاتھ لگائیں گے تو عمل کثیر ہو جائے گا، کیونکہ دیکھنے والے کو گمانے غالب یہی ہوگا آپ نماز میں نہیں. السلام علیکم. اور ایک بات سن لیں، ایک ہاتھ سے وہ ٹوپی اٹھائی جا سکتی ہے جو کڑک ہو، جیسے امامے کی ٹوپی ہوتی ہے یا چٹائی وغیرہ کی ٹوپی جو مسجد میں یوز ہوتی ہے، وہ ایک ہاتھ سے رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسی پتلی ٹوپی ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے نہیں رکھی جائے گی، یا رکھ بھی لیں گے تو ڈھنگ سے نہیں رکھ پائیں گے، دوسری رکعت میں پھر گرے گی وہ، تو آپ کو معلوم ہے پھر گرے گی تو نہ اٹھائیں اس کو، اسی حال پہ رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں. سجدے سے اٹھنے کے وقت میں زمین پہ کچھ لوگ 2 ہاتھ لگاتے ہیں، ایک ہاتھ لگانا ہے یا دونوں ہاتھ؟ اور اسی طریقے سے وہ ٹوپی وغیرہ دونوں ہاتھ سے لے سکتے ہیں سر پر یا نہیں لے سکتے؟ سجدے سے جب اٹھیں گے، اگر اس کو کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، صحت مند ہے، جوان آدمی ہے، تو ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے پہ رکھے گا اور پنجوں کے بل ایسے سیدھا کھڑا ہو جائے گا. کوئی ہاتھ زمین پہ نہیں رکھے گا، نہ ایک ہاتھ نہ 2 ہاتھ، ایسے ہی پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے گا. یہی سنت ہے. السلام علیکم کوئی حضور. تکلیف ہے، ابھی بات چل رہی ہے، اگر کوئی تکلیف ہے، جیسے بہت زیادہ ہیلتھی ہے، وزنی ہے، کمر وغیرہ میں درد ہے، بوڑھا ہے، تو وہ فوراً نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، تو وہ ایک ہاتھ یا 2 ہاتھ رکھنے کی حاجت ہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ ہاتھ کے سپورٹ سے کھڑا ہوگا تو ایک خلاف سنت ہے، نماز مکروہ تنزیہ ہی ہوگی. دوسرا مسئلہ کیا آپ فرما رہے تھے؟ ٹوپی سید صاحب. جی، ٹوپی اگر گر گئی ہے تو وہ دونوں ہاں، ہاتھ سے اٹھا لیں یا دونوں. پھر ایک ہاتھ سے؟ ہاں، ابھی ایک صاحب نے پوچھا تھا، تو وہی دونوں ہاتھ سے اگر آپ ٹوپی اٹھائیں گے تو عمل کثیر ہوگا، وہ نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح سے سجود وغیرہ میں سجدے سے اٹھتے ہیں جلسے میں، تو بعض لوگ اپنا کرتا آگے کا یا شرٹ پہنے تو وہ دونوں ہاتھ سے صحیح کرتے ہیں، یا رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو کرتا دونوں ہاتھ سے صحیح کرتے ہیں، شرٹ دونوں ہاتھ سے صحیح کرتے ہیں. تو بعض کے نزدیک فاسد ہو جائے گی، اور کچھ ایسے ہیں جو فرماتے ہیں تحریمی ہوگی. تو بہرحال تحریمی بھی جو ہے کم جرم نہیں ہے، توبہ ہے، اس سے پڑھنا اس کو واجب ہوگا. ہاں، اگر کسی کو ایسا پرابلم ہے
जो हेल्थी रहते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम, ये मसला पेश आता है कि वो रुकू से सीधा खड़े होते हैं या सजदे से जब कायदे से कयाम की जानिब लौटते हैं तो पीछे से कुर्ता जो है वो फंस जाता है, घुस जाता है। तो अब जो है, और देखने में वो बुरा मालूम होता है, तो वो एक हाथ से उसको निकाल सकता है, एक हाथ से उसको सही कर सकता है। उसमें कोई नमाज में कराहत नहीं आएगी, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि नहीं करने में देखने में बहुत वो भोंडा मालूम होता है। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था, मुझे अक्सर नमाज में खुजली का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सुना, लेकिन बाद में वीडियो बंद हो गई तो इसलिए पूरा मैं सुन नहीं पाया। तो इससे खुजली ये कि एक रुकन में, कयाम एक रुकन है, रुकू एक रुकन है, कौमा, जलसा, सजदा, कायदा, एक रुकन में अगर 3 मरतबा हाथ हटा कर खुजाएंगे तो नमाज फासिद हो जाती है। लेकिन किसी को खुजली की वाकई बीमारी है तो जिसको बीमारी उसको इलाज भी कराना चाहिए, दवा वगैरह उसकी लेना चाहिए। जब तक इलाज चल रहा है तो ये प्रॉब्लम अगर उसको होता है तो चूंकि उसको एक बीमारी है तो वो अगर एक रुकन में अगर 3 मरतबा हाथ हटाएगा तो उसकी नमाज बिगड़ेगी नहीं, टूटेगी नहीं, नमाज हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। इम्तियाज भाई, मेरा भी एक सवाल था अभी, जैसे सजदे में जाने से पहले अक्सर लोग जो पैंट वगैरह पहना करते हैं वो क्या करते हैं, थाइस के पास से या घुटने के ऊपर से दोनों तरफ से पैंट थोड़ी हल्की सी ऊपर खींचते हैं ताकि सजदे में जब जाओ तो पैंट स्ट्रेच नहीं होने। हाँ, तो क्या वो करना उसको मकरूह तहरीमी फरमाया। कल इंशाल्लाह मकरूआत तहरीमा बयान करेंगे, उसमें ही आएगा, नमाज मकरूह तहरीमी होगी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। और कुछ? वालेकुम सलाम। हज़रत एक सवाल है मेरा। अच्छा हज़रत, मैं नमाज में वजू भूल गया, नहीं नमाज हो जाएगी हज़रत? क्या वजू करना भूल गया मैं, नमाज हो जाएंगे? हाँ, नहीं नमाज कैसे होगी? वजू नमाज के लिए शर्त है, फर्ज का दर्जा रखता है। अच्छा, अगर नमाज में भी आप फिर से पढ़ना होगा, तौबा करके फिर से पढ़ना होगा। जी हज़रत। और हज़रत दूसरा सवाल नहीं है। अच्छा, नाक पे पानी चढ़ाया और नाना मस्जिद तक गया नहीं, मैं वजू हो जाए ना? वजू हो जाएगा, क्योंकि वजू में ये चीज सुन्नत है, गुस्ल में, नहाने में ये चीज फर्ज है। जी हज़रत। नाक में नरम हिस्से तक पानी चढ़ाना। अगर गुस्ल में ऐसा हुआ तो फिर गुस्ल नहीं होगा, वजू में ऐसा हुआ तो वजू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगा। आपने जो बताया था, और एक बात याद रखें, वजू में नाक में पानी चढ़ाना ये सुन्नती नहीं है, सुन्नत मौक़िदा है। ये लोग कम जानते हैं, सुन्नत मौक़िदा में से है। इमाम ने सुन्नत ने पता है रज़िया शरीफ में बयान किया। फरमाएं। हज़रत जो आपने बताया था, अगर नमाज की हालत में बेहोश हो गया तो 6 नमाज गुजर गए तो उसके लिए वो माफ है, अगर उसके कज़ा बाकी है तो हज़रत? जो बेहोश होने से पहले की जो कज़ाएं थी वो तो पड़ेगा, अब जो कज़ाएं उसमें होंगी वो माफ होंगी। जी। अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, दिमाग में चोट आई, 6 महीना बेहोश रहा वो, तो 6 महीने की नमाज माफ होगी। बेहोश होने के बाद, बेहोश होने से पहले जो कज़ाएं हैं वो तो पढ़ना ही है उसको। जी। आधा घंटा टाइम दे दो। और फरमाएं। जी हज़रत। जी। अच्छा हज़रत, टोपी पहनना भूल गए, नमाज हो जाएंगे हज़रत? हालत नमाज में टोपी पहनना, सर ढाकना अमामे से या टोपी वगैरह से, सर ढाकना अमामे से सुन्नत है। जी तो आदाब में से है, लेकिन अगर किसी ने नंगे सर नमाज पढ़ लिया है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन इसकी आदत नहीं बनाना चाहिए। जी हज़रत। मोबाइल पे पढ़ना नमाज हो जाएगी? मोबाइल पे
अदब हाँ, करते हैं। रुमाल से भी सर ढाका तो बहरहाल जो अदब का तकाजा है वो तो पूरा किया उसने। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। जी। नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना गुस्ल में, नाक की नरम हड्डी तक कहाँ तक है? उसकी हद कहाँ है? भाई ये नर्म हड्डी जहाँ खत्म होती है, सख्त हड्डी का जो आगाज होता है, इससे पहले पहले तक ये नर्म हड्डी है, इतने पूरे में चढ़ाना फर्ज है। समझ रहे हैं? और कुछ? हजरत सब के मुतालिक आप बता देंगे, जैसे आपने फरमाया बड़ी मस्जिद और छोटी मस्जिद, तो एक नॉर्मल मस्जिद में कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है तो कितनी सब दूर तक मैं उस नमाजी के सामने से गुजर सकता हूँ? आप नहीं गुजर सकते हैं, हिंदुस्तान में कोई बड़ी मस्जिद ही नहीं है। अच्छा, यानी कोई आखिरी मस्जिद नॉर्मल मस्जिद में पीछे एकदम नमाज पढ़ रहा है और मैं पहली सफ में हूँ। मैंने दिल्ली की जामा मस्जिद की मिसाल दी है जी। हैदराबाद की मक्का मस्जिद का जिक्र किया, उसमें सफे आखिर में कोई नमाज पढ़ रहा है हाँ। और आप एकदम पहली सफ में उसको क्रॉस कर रहे हो और आप और नमाजी के दरमियान कोई आड़ नहीं है, आप गुनहगार होंगे। लेकिन ये शर्त है कि उसके सामने बराबर में बैठा रहना चाहिए, राइट साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? हाँ, वो हटना है, वो क्रॉसिंग नहीं है। ठीक है। अभी वादी नूर में हम वादी नूर में एक बात अर्ज कर दूं, वादी नूर में हमारा इज्तिमा होता है, अल्लाह करे फिर वो दिन आए, तो क्या होता है कि जमात के बाद जमातें बनते रहती हैं, जमाते सानी के नाम पर लोग दूसरी तीसरी चौथी जमात बनाते रहते हैं। अब वहाँ जो है 3 सफ के आगे से गुजर सकते हैं। अब जो लोग मसला जानते हैं गुजरते हैं, तो कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं हजरत वो नमाजी के आगे से गुजर रहा है, तो वो आगे से इसलिए गुजर रहा है कि मैदान है वो, और मैदान में 3 सफ के आगे से गुजरने की इजाजत है, भले कोई आड़ हो या ना हो। हजरत ये मसला मस्जिद के लिए नहीं रहेगा, मैदान का जो भी आपने बताया 3 सफ की आड़ में, बड़ी मस्जिद के लिए रहेगा, मस्जिद के लिए है, बड़ी मस्जिद के लिए है, बड़ी मस्जिद जो है वो हिंदुस्तान में तो नहीं है। एक आलिम से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अगर कयाम में कोई है और कयाम उसकी नजर जितनी हद तक के जाती है, अगर नीचे नजरें नीची हो लेकिन फिर भी कुछ सफ़ें दिखती हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो पीछे नमाज पढ़ रहा है और 5 सफ उसको दिख रही है आगे की, तो वो उसके आगे से जा सकता है। एक आलिम साहब ने ऐसा जवाब दिया। बड़ी मस्जिद के लिए बोला उन्होंने। अच्छा, और मैदान के लिए। अच्छा, और हजरत जो आपने ये सजदे के ताल्लुक से कहा कि अगर किसी ने एक ही सजदा किया और फिर उसका गुमान हो कि अगर 2 सजदा किया हो और फिर भी उसको ऐसा ख्याल आ रहा है कि यार एक ही सजदा हुआ होगा, तो वो फिर से याद रखें, नमाज में सजदे में या रकत वगैरह में 3 हुई कि 4 हुई, इसमें अगर आपको डाउट होता है तो गुमाने गालिब देखा जाएगा। गुमाने गालिब क्या है, ज्यादा ख्याल किस जानिब जा रहा है, उसको फॉलो करेंगे और बगैर सजदे सौ की नमाज हो जाएगी। अच्छा, एक और कम की जानिब जा रहा है तो कम समझेंगे, ज्यादा की जानिब जा रहा है तो ज्यादा समझेंगे। जो आपने खुजाने के ताल्लुक से फरमाया कि नमाज में 3 मिकदार एक ही कयाम में हो तो 3 मरतबा किसी ने खुदा, तो कोई भी हाथ सीधा उल्टा दोनों में से कोई भी हाथ यूज कर सकते हैं यहाँ से? नहीं, कयाम में जो है सीधा हटाएंगे और रुकू सुजूद दूसरे अरकाने नमाज में कोई सा भी हाथ हटा सकता है, लेकिन कयाम में अगर उल्टा हटा दिया तो ऐसा नहीं कि नमाज टूट जाती है। बात लोग यही समझ बैठे हैं, उल्टा हटाया नहीं जाएगा, लेकिन किसी ने हटा दिया तो ऐसा नहीं कि उसकी नमाज जाती रही, ऐसा नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अमामा शरीफ लोग बांधते हैं बहुत सारे स्टाइल के, और वो अमामा शरीफ जो है होता है उसके सामने की जो चोंच होती है वो बड़ी होती है अमामा शरीफ में। तो जब वो सज्जा करते हैं तो सज्जा करने में अमामा शरीफ बहुत ज्यादा पीछे हो जाता है, जिससे सर के बहुत सारे बाल नजर आते हैं। तो इसके मुतालिक भी याद रखें, मर्द के सर के बाल दिखने से मर्द की नमाज में कोई कराहत नहीं है,
औरत का अगर दुपट्टा वगैरह हट जाए और सर के बाल या लटकते हुए बाल दिखें तो उसकी नमाज में खराबी पैदा होगी। मर्द का अगर बाल दिखता है आगे का पीछे का या अमामे शरीफ की जो मेहराब के ऊपर का तो नमाज हो जाएगी। टोपी का जो मसला है, अमामा शरीफ के बांधने पर आधी टोपी नजर आ रही है तो बाल नहीं है, इसके बारे में क्या फरमा रहे? अमामा शरीफ बांधते हैं तो अमामा शरीफ बांधते हैं तो उसमें आधी टोपी नजर आती है बीच में हाँ, तो उसके लिए क्या होगा? गुलिस्तान नसीब में इस पर अच्छी वजाहत हुई थी कि उसको एहतिजार कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह में। तो एहतिजार पर जो नमाज मकरूह तहरीमी है, सदरुल शरिया रहमान बारे शरीयत में उसको हाशिए में जो है हमारे उलमा ने बयान किया है कि उस वक्त मकरूह तहरीमी होगी जब अमामे के नीचे कोई कपड़ा ना हो। हमारे अमामे के नीचे टोपी रहती है तो कपड़े के हुक्म में तो टोपी दिखती है ना, सर के बाल नहीं दिखते हैं तो नमाज हो जाएगी। जी जज़ाकल्लाह। हमारे यहाँ कुछ लोग रुकू करते वक्त अपने दोनों पैर मिला लेते हैं, फिर रुकू से उठते वक्त पैर जुदा कर देते हैं, इससे कुछ करात हो गया सर? जो है खड़े होने में कयाम की हालत में, चाहे रुकू की हालत में हो चाहे कौमा में, 4 उंगल का कम से कम फासला हो। और अगर कोई हेल्थी है जिसकी रान वगैरह बहुत मोटी है तो 4 उंगल का डिस्टेंस रखेगा तो आपस में रगड़ खाएगी और बेचैनी होगी तो वो फैला सकता है। एकदम मिलाने का जिक्र तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। इम्तियाज भाई ये एक सवाल है कि अगर अमामा जो है सजदे में अगर अमामा लगता है यानी अमामे की जो नोक है वो अगर लगती है, पेशानी नहीं लगती तो पेशानी सजदे की असल ये कि पेशानी को जमीन की सख्ती महसूस हो। जब आपका पेश अमामे का बीच में आ रहा है और उसी पे सजदा हो जा रहा है, पेशानी लगी नहीं रही तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। पेशानी लगना शर्त है, इतना कि जमीन की सख्ती महसूस हो पेशानी। जी वालेकुम सलाम। इम्तियाज भाई आपने कहा जैसे कोई शख्स बेहोश हो जाए, बेहोशी की हालत में जो नमाज रहेगी उसकी नमाज माफ हो जाएगी। अगर कोई शख्स नमाज की हालत में जैसे बेहोश होकर गिर जाए, चक्कर खा के गिर जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? और इसी से रिलेटेड एक और है, जैसे अभी कोई शख्स किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सपोज वो होशी में होश की हालत में है मगर वो इस हालत में नहीं कि नमाज पढ़ सके तो उसके लिए क्या हुक्म है? और पैरालाइज पेशेंट जो नहीं माजूर होते हैं मुकम्मल तौर पे तो उनके लिए क्या हुक्म है? क्या उनकी नमाज माफ होगी या उनको नमाज सजा पढ़ना पड़ेगा? और कुछ पेशेंट ऑपरेशन में पेशेंट को पूरा ही बेहोश नहीं किया जाता, आधा बेहोश किया जाता है तो उसके लिए क्या हुक्म है? नमाज सजा होगी कि नमाज माफ हो जाएगी? ये सवाल है। अब आप एक साथ इतने मसाइल आप पेश कर दिए। पहला मसला क्या आपने पूछा था? पहला ये था कि कोई शख्स नमाज की हालत में बेहोश होके गिर जाए, चक्कर खा के गिर जाए। अब बेहोश होके गिर गया है तो उसकी नमाज टूट गई। बेहोश हुआ तो नमाज फासिद हो गई। अब होश में आएगा, अगर वक्त है तो अदा पड़ेगा और वक्त निकल गया तो कज़ा पड़ेगा। और इसी हालत में छठी का हाँ पढ़ना है। और इसी हालत में छठी का वक्त भी गुजर गया तो 6 की कज़ाएं माफ होंगी। और छठी का वक्त खत्म होने से पहले होश में आ गया अब इनकी कज़ाएं उससे फर्ज होगी। नमाज पूरी शुरू से स्टार्ट करना है, जहाँ से छोड़ा था वो वहाँ से पढ़ना।
शुरू से स्टार्ट करेगा भाई। और क्या मसला आपने पूछा था? दूसरा मसला ये था कि कोई शख्स किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो होश में है मगर नमाज का वक्त है और नमाज का वक्त खत्म हो गया उसी हालत में, तो उसके लिए क्या हुक्म है? होश में है ना वो? हाँ मगर एक्सीडेंट हुआ है होश में, हाँ ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है तो मरीज के हुक्म में बैठ के पढ़े, सर के इशारे से पढ़े। ये सब मसले कब अमल में आएंगे? वो मरीजों के लिए, ऐसे ही नाजुक हालत के लिए बैठ के पढ़ेगा। नहीं बैठ के पढ़ सकता तो लेट कर सर के इशारे से पढ़ेगा। सर के नीचे कुछ ऊंचा तकिया वगैरह रख ले, हॉस्पिटल वगैरह में बेड रहता है, हाफ उठा दो, उसका हैंडल घुमा दो तो सर जो है चेहरा सिमते किबला हो गया। लेट कर नमाज पढ़ेगा, रुकू में सर कम झुकाएगा, जितना रुकू में झुकाए उससे ज्यादा सुजूद में झुकाएगा, इस तरह से नमाज पढ़ेगा वो। जी लकवा मारता है वो मुकम्मल तौर पे माजूर होते हैं, वो ना उससे वजू कर सकते ना उससे कुछ कर सकते हैं। तो लकवा मार दिया तो वो खड़े नहीं हो सकते ना, बैठ के तो पढ़ सकते हैं। नहीं बहुत से ऐसे मरीज नहीं बैठ पाते। अब अगर उनका सर वगैरह भी हरकत नहीं कर पाता, अगर उनका सर भी हरकत नहीं कर पाता, गर्दन भी हरकत नहीं कर पाती, यानी वो इशारे से रुकू सुजूद भी नहीं कर सकेंगे, ऐसी हालत में है कोई भी मरीज, तो उस पे नमाज माफ है। और छठी का वक्त इसी हालत में गुजर गया तो कज़ाएं भी सारी की सारी माफ है। और उसमें वजू का क्या हुक्म रहेगा कि वो पैरालाइज पेशेंट को वजू से कर सकता है? और जब उसमें नमाज ही माफ हो जाएगी तो वजू क्यों करने जाएगा वो? जी नहीं, आपने कहा कि उसका सर सर का मूवमेंट हो रहा है, कि उसका सर का मूवमेंट हो रहा है सर, तो कोई और वजू करा दे उसको, कोई और वजू करा दे, या कोई कराने वाला नहीं है तो ये तयम्मुम कर ले। अब अगर हाथ वगैरह इसका पेशेंट का सूख गया, काम नहीं कर रहा, तो फिर ये कि अपना चेहरा दीवार से जितना ऐसे ऐसे टच कर सकता है और हाथ जितना दीवार से लगा सकता है उतना लगाए, उसका तयम्मुम हो गया। जो हिस्सा दीवार वगैरह को टच होने से रह गया है वो उसके लिए रुखसत है, माफ है, उसका वजू हो जाएगा, नमाज पढ़ेगा। जी। और आखिरी हमारे शरीयत में है कि किसी के दोनों हाथ कट गए हैं, अब कोई वजू कराने वाला नहीं है तो वो अपना चेहरा दीवार से लगाएगा। अब जाहिर सी बात है वो माजूर शख्स चेहरा लगाएगा तो ये गाल लगेगा, ये लगेगा, पेशानी का कुछ हिस्सा लगेगा, ये लगेगा, ये आँख के हल्के का हिस्सा तो रह जाएगा ना, ये नाक के नथने, ये नीचे का हिस्सा, ये हिस्सा रह जाएगा। तो जो रह गया है वो रुखसत है, वो माफ है, उस पर उसकी नमाज हो जाएगी। जी जज़ाकल्लाह। जी इम्तियाज भाई दुआ फरमा दें, वक्त काफी हो चला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना 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 आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। मौला जो जहाँ से हाजिर हैं सबको दुनिया और आखिरत में खैर कसीर अता फरमा, इल्म नाफे अता फरमा, अमल की खैरात अता फरमा, गुनाहों की नहुसत से बचा, बुरी आदत से बचा, बुरी संगत से बचा, बदनजरी से बचा, बेहयाई से बचा, बदअकीदगी से महफूज फरमा। पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों पर फजल फरमा, सबकी जानो माल इज्जत व आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। तमाम जितने मरीज हैं सबको सेहत अता फरमा। मरीज करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदके सबको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जितने मुसलमान हालिया बीमारी में हलाक हो गए मौला उन सबको दर्जे शहादत अता फरमा। मेरे करीम आपसे भी दुआ की दरखास्त है, आज हमारे अब्बा हुजूर की इंतकाल की शब है, आप दुआ करें कि हमारे अब्बा हुजूर की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें करवट करवट जन्नतें अता फरमाए।
उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आमीन आमीन। वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इम्तियाज भाई कल के लिए एक सवाल होगा इंशाल्लाह कि वो जी। छठी का वक्त क्या है? मैं याद छठी का? रखूंगा। आपने कहा था छठी ना कि नमाज। छठी, हाँ वो छठी नमाज है क्या? हाँ छठी नमाज। जी 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 ठीक है इम्तियाज भाई, दुआ में याद, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। और जितने साथी हैं जो हाजरीन हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि खुदारा जब आप एंटर होते हैं तो अपना वीडियो भी ऑफ रखें, अपना ऑडियो भी ऑफ रखें, और जब सवाल करते हैं तो अपना ऑडियो सवाल मुकम्मल होने के बाद म्यूट कर दें, यानी बंद कर दें, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी सुनिए सुनिए वालेकुम सलाम। सुनिए